Hello students. Okay, as you all know that we have started this chapter infinitives where I have given you basic information about finite and non-finite verbs, right? So finite verbs are what? These are the verbs which come just after the subject, right? And non-finite verbs are what? Which do not comes after the subject. Okay, so this was the basic difference that we have studied in your previous video. Continuing from that, today we are going to discuss infinitives. So just it's a reminder that you know what you have to remember, what you have to keep in mind, that whenever the verb is having a subject, okay, and it is limited or it gets affected by the number of subject, then it is called as finite verbs. On the other hand, the verb, when it is not having any subject, okay, and when it is not limited to the particular subject, then it is called as what? Infinitives. So basically infinitives what? An infinitive usually begins with the word to, okay, and it is followed by what? The base form of a verb. Okay, so what is the base form? Base form is what? The V1 form. Okay, 2 plus V1. Okay, like to read, to play, to run, to laugh, to cry, to smile, to sing, plenty of them. Okay, so whenever we write to with the verb, we consider it as infinitive, है ना? तो जब भी हम infinitive की बात करते हैं, हमें शुरू से ही आपने अपने previous classes में भी, है ना, in the lower classes में भी आपने पढ़ा होगा कि जब infinitives की बात आती है तो हम एक ही formula जो है, एक ही concept जो है वो use करते हैं, that is 2 plus V1. Now V1 is what? It is the base form, right? Base form of verb. There is also another one, that is 2 plus V ing form. Okay, it is another. See, basically we have 5 forms of verb, right? The V1 form, V2 form, V3, V4 and V5. Let's take an example like play. Play is an action word, right? We are showing that yes, some action is going on, so play. What will be the V2 form? Okay, what could be the V2 form? See, play. V3 will be played. V4 will be playing. And V5 is plays. So basically these are the forms of verb, okay, in different form. Like V1 is the base form, the first form. Okay, so here 2 plus V1, it individual whole concept जो है ना, 2 के साथ verb का first form क्या कहलाता है? वो कहलाता है infinitive. ओके, अब यहाँ बताइए 2 प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है. अब यहाँ हमें पता है वर्ब में हम क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ हम क्या ढूंढ रहे थे? एक्शन ढूंढ रहे थे, है ना? एक्शन मीन्स वर्ब, बराबर. तो यहाँ हम क्या ढूंढ रहे हैं? एक्शन. लेकिन वर्ब के आईएनजी फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं नाउन. आप सोचेंगे मैम वर्ब के आईएनजी फॉर्म में हम नाउन कैसे ढूंढेंगे? देखिए, कभी भी याद रखिए, ओके, तो यहाँ याद रखने की कौन सी चीज़ है कि जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले रहे थे, है ना, तब हम सिर्फ वर्ब को ढूंढ रहे थे, एक्शन ढूंढ रहे थे, इसलिए हमने उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बताया है? इन्फिनेटिव बताया. लेकिन जब हम वर्ब का एक एक्शन जो है, हमेशा एक वर्ब जो है एक्शन के तौर पर ही काम नहीं करता, कभी कभी सिर्फ एक्शन के ना बताते हुए वो नाउन के बारे में भी बात होती है. तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है, नाउन जो है, वो क्या बता रहा है? सिर्फ नाउन. नाउन यानी सिर्फ नाउन, राइट? तो सिर्फ नेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना. अब इस कॉन्सेप्ट में जब हम 2 प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब हम ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसे हम कहते हैं जिरल. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? जिरल. लेकिन अभी जिरल के बारे में ही हमारा
प्रिसाइज करना है, मुझे सिर्फ आपको इन्फिनेटिव्स के बारे में बताना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं, है ना। जब कभी भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, उसके क्या कहना चाहिए, उसके एक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो हम इन्फिनेटिव्स को ही क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जब कभी हम आईएनजी फॉर्म के बारे में बात करते हैं, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू, हम क्या ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, हम नाउन ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, नाउन ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए वहाँ पर वो जेरेंट जो है वो काम आता है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, यहाँ देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ। आई एम looking forward to meeting you. Now tell me what will come. I am looking forward to meeting you. Okay, what will come? मैं आशा करती हूँ या मैं उम्मीद करती हूँ क्या करने की। देखिए, जब हम यहाँ पर वर्ब ढूंढ रहे थे, एक्शन ढूंढ रहे थे, तो हम एक क्वेश्चन जो है वो खुद से पूछते हैं, उस सेंटेंस का हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। जब हम वर्ब की बात कर रहे होते हैं तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, डू व्हाट, मीन्स क्या करना है ना। सेंटेंस हमें बताना चाहिए, सेंटेंस में आंसर हमें मिलना चाहिए डू व्हाट का, क्या करना है, ठीक है। जब हम यही नाउन के बारे में, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तब हम वहाँ पर व्हाट मीन्स क्या, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलना चाहिए। अब यहाँ मैं कह रही हूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आशा करती हूँ या मैं उम्मीद करती हूँ। अब आप यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्या करने की, ये पूछेंगे डू व्हाट, और यू विल से व्हाट, यू विल से व्हाट, किस बात की उम्मीद करने की, टू मीट, है ना। लेकिन यहाँ टू मीट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आईएनजी, है ना। मीटिंग यू, आपसे मिलने की उम्मीद, क्या करने की उम्मीद, आपसे मिलने की। इसका क्वेश्चन का जो है ना आंसर हमें मिलना चाहिए। ओके, तब जाकर ये सेंटेंस पर से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि पर्टिकुलरली कौन सा वर्ब, है ना, कौन सा वर्ब यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेंगे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। She came here to helping me। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम आईएनजी फॉर्म, है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि फाइनाइट वर्ब्स ढूंढे कि नॉन फाइनाइट। चलिए वहाँ तक समझ गया, तो उसके बाद कैसे फाइंड आउट करें कि हमें टू इन्फिनेटिव्स कहाँ यूज़ करने हैं, है ना, ये जो इन्फिनेटिव्स वर्ब्स कहाँ यूज़ करने हैं या कैसे फाइंड आउट करने हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। कॉन्सेप्ट को अगर आप इजीली धीरे धीरे समझेंगे तो बहुत क्विकली आप समझ जाएंगे, और लॉन्ग टर्म तक, यानी लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक आप उसे याद भी रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आप नहीं समझ पाएंगे तो वो कन्फ्यूजन कैसा है, वो बिल्कुल बना हुआ रहेगा। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा है कन्फ्यूजिंग, लेकिन आपको समझना है। मैंने क्या कहा कि जब कभी भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन यूज़ करते हैं हम, डू व्हाट, है ना, क्या करने के लिए। यहाँ देखिए, शी केम हियर, वो यहाँ आई, ठीक है। अब आप देखिए, टू हेल्प आएगा या हेल्पिंग मी आएगा, क्या आएगा बताइए। हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वो यहाँ आई, क्या ये कोई सेंटेंस बन सकता है, क्या ये कोई क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, नहीं। यहाँ पर इसका पर्पस हमें किससे मिलेगा, डू व्हाट, शी केम हियर टू डू व्हाट, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने। आप समझ रहे हैं। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये इन्फिनेटिव है या जेरंड है, ये नाउन बता रहा है या वर्ब बता रहा है ना, ये किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत इजी टेक्निक है, ये पूरा एक इंडिविजुअल, है ना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों चलते हैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं ये इसी तरीके से आते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं हमें कि शी केम हियर टू हेल्पिंग, फॉर हेल्पिंग मी, है ना, हमें ऐसे साउंड करते हैं कि अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन आप क्वेश्चन देखिए, आपको जब कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये कॉन्सेप्ट में आप ये डू व्हाट का क्वेश्चन लगाइए,
और टू प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म में आप व्हाट ये क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। I go to the market to buy vegetables, या आप ऐसे लीजिए पर buying vegetables। Okay, now I go to the market to buy vegetables या to buying vegetables। क्या आएगा? मैं मार्केट गया या मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्या करने के लिए, क्या करने, है ना। टू डू व्हाट, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं, क्या पूछ रहा है, क्या बिल्कुल नहीं, हमें क्या बता रहा है वो कि क्या करने के लिए, टू बाय वेजिटेबल्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो रहा है, वहाँ हम उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का जो सेंटेंस में आंसर फाइंड आउट करने का तरीका है वो हम क्वेश्चन फ्रेम कर कर फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही सिमिलर साउंड करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को इंडिविजुअली आपको समझाया कि अगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, 5 फॉर्म में से अगर यहाँ पर आईएनजी फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, है ना, तो ये जिरन कहलाएगा, क्योंकि ये कौन सा एक्शन ढूंढ रहा है, कौन सा एक्शन ढूंढ रहा है, ये नाउन, है ना, नाउन ढूंढ रहा है। नाउन क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ नाउन, जबकि यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है ना, कौन सा एक्शन हो रहा है वो ढूंढ रहा है। तो इस तरीके से टू प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है इन्फिनेटिव्स। ओके, अब यहाँ कुछ ऐसे पर्टिकुलर मैंने आपको समझाया था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइम पे भी कि कुछ फ्रेजेस होते हैं, है ना। अब ये जो फ्रेजेस होते हैं, ये फ्रेजेस बिल्कुल क्या कहना चाहिए, जब ये लगकर आते हैं, है ना, कुछ एग्जैक्ट मैं आपको 10 फ्रेजेस बताऊंगी, वो फ्रेजेस ऐसे हैं जिनमें हम आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कौन से फ्रेजेस हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, आई रब इट। So as you can see on the board here, these are some phrases: look forward, addicted to, accustomed to, averse to। Okay, averse to means जिससे हमें नफरत है ना, नफरत से। with a view to, prone to, proof to, give to, owing to, and in addition to। Now these phrases, all these 10 phrases here, which type of verb is used? The verb ing form. This verb's ing form is used in all these 10 phrases. Apart from this, जितने भी बाकी हैं उन सभी में verb का फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब का बेस फॉर्म जो है वो यूज होता है, ठीक है। मोस्ट आपको कॉमनली दिखेंगे लुक फॉरवर्ड, एडिक्टेड टू। ओके, ये आपको बहुत कॉमन दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। नाउ टेल मी, इज द सेंटेंस करेक्ट? ओके, इफ आई से ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, ओके, यहाँ एडिक्टेड, यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन सा फॉर्म होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो स्मोक नहीं हो सकता। अब इसका सेकेंड रीजन मैं आपको बताती हूँ, ही इज एडिक्टेड टू, उसे बुरी आदत है। अब क्या करने की बोलेंगे हम, आदत क्या करने की होती है, या क्या क्या बुरी आदत है, हम पूछते हैं ना what is that addiction, है ना। so क्या refer to answer smoking। okay, he is addicted to smoking। okay, यहाँ smoke नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, he is addicted to smoking। okay, so verb का कौन सा फॉर्म, ing फॉर्म। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने addicted लिखा। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, है ना, ये सारे फ्रेजेस थोड़े से कॉमन हैं, तो ये इनके साथ हमेशा याद रखिए कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा। नाउ मैं आपको कुछ और वर्ब्स के फॉर्म बता देती हूँ जिसमें आप इन्फिनेटिव्स जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड
as the subject, okay, but it is referred as it, ठीक है, सब्जेक्ट के जैसे यूज होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम क्या क्या यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं सब्जेक्ट को किससे, इट से, ओके, इट लगाकर हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू चीट इज रॉन्ग, यहाँ पर सेंटेंस कहाँ से बिगिन हुआ है, टू चीट, तो यहाँ हम लिखेंगे इट इज रॉन्ग टू चीट, okay, so we prefer, okay, we prefer what, we prefer using it instead or as a subject, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो यूज हो रहा है इन्फिनेटिव में, हम वहाँ क्या प्रेफर कर रहे हैं, इट जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। इट इज रॉन्ग टू चीट, ओके, टू ड्रिंक इज हार्मफुल, सो इट इज हार्मफुल टू ड्रिंक, okay, to drink, to cheat, okay, so that infinitive will remain same, okay, as you all know that it cannot show variation with the subject, number of subject, or even with the tense, okay, so just from the beginning, just as in place of subject we use it. Infinitives are also used after adjectives like good, bad, easy, and all those. For example, here it is good to talk, this is an adjective, and this to do is an infinitive. After adjective it is an infinitive, it is used. Oranges are good to eat, okay, so this is an infinitive, and after this is an adjective, and after this an infinitive is used. Similarly, infinitives are also used for joining sentences also, like here is for example, Asha sat on the chair, she wanted to see the TV, just like in conjunction, but here it is just a joining joining word that is used to join two sentences, like Asha sat on the chair to see the TV, okay, so to see will be the infinitive, and it has joined the two different sentences. It's a very easy topic to understand, okay. I hope that you have understood today's topic. Soon we are going to see the exercises which have been given in the book, okay. Do note it down all the given examples, that it will be helpful for you to understand in the future also. Okay students, good day.